Hello students, welcome once again into our unit number 4, chemical bonding and molecular structures. Today our lecture number 8. So in this lecture number 8, we will study about the limitations of the octet rule. So what are the limitations that we have to observe in our octet rule? So we know that first the octet rule, which states that bonds are formed by atoms in order to achieve the 8 electronic configurations in the valence shell, which applies quite well to the elements of the second row of the periodic table. Why? Because for the second period elements, the only available orbitals are s2p6 and which when filled comprises the octet. Once again, why we have to use a octet rule? So according to Lewis theory, right, and Koshele-Lewis theory, the concept is like that. For example, neon, so they complete their octet. For example, in argon, they also completed their octet. Neon, argon, krypton, xenon, radon. Radon is a radioactive element, so we not that much interested in our Nobel gas elements, but mainly krypton is also completed their octet, same way xenon. But helium, they completed their duplet. Okay, so once again, what is the basic of this octet rule? The octet rule, which states that the bonds are formed in atoms in order to achieve the 8 electrons in their outermost orbit or in the valence shell, right? Mostly you saw that in the second row, because we know that the first having a hydrogen to helium. Second, it starts from lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon, right? So what is the electronic configurations of this? 1s2, 2s1. Same way in the case of beryllium is 1s2, 2s2. Here 1s2, 2s2, 2p1. In carbon 1s2, 2s2, 2p2. In nitrogen 1s2, 2s2, 2p3. In oxygen 1s2, 2s2, 2p4. In halogen 1s2, 2s2, 2p5. Likewise in the neon 1s2, 2s2, 2p6. So in the second row, you know that all the orbitals, because this is the full, right? So it's completed with 1s2, 2s2. So all these second period elements, the only available orbitals are s and p. So the maximum capacity of neon is like that, 1s2, 2s2, 2p6. So still they are available, and we know that the capacity of s orbital is 2 and p is 6. So they follow the octet rule. Okay. Beyond the second row, it is generally applicable, right? After the second row, it is generally applicable only to the non-transitions elements, not transitions element. We know that in the fourth period, so 3D group, 3D block elements, 4D block elements, 5D block elements, 6D block elements, 4F block element, 5F block element. So octet rule is not applied to such a type of a transitions element. But it does not work so well for the transitions elements and post-transitions elements. It means that the metals that follow a row of transitions metals. So the octet rule is applied to the ionic compound. What is the limitations? So octet rule definitely is applied to the ionic compound, but really works well only for the cations, which is used for the cations. Okay, cations of what? Cations of the group 1 means alkali elements. In group 2 metals, right? ये जो हम बता रहे हैं आयोनिक बॉन्ड को अच्छी तरह से ऑक्टेट रूल से तभी भी समझा जा सकता है कि जो केटाइंस आपके हैं, केटाइंस यानी पॉजिटिव आयंस है, वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से बिलोंग करते हो, यानी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. वी नो दैट दिस अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल तो एस ब्लॉक में है ही, ठीक है. फिर जो एनाइंस होते हैं, मेरे जो एनाइंस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो नॉन मेटल्स होने चाहिए,
राइट, नॉन मेटल्स का होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें. So this are the it works well to explain the structure of the most of the organic compound. वो कहाँ पहले चलेगा मैं आपको यहाँ ये दिखा देता हूँ. देखिए हम पहले इसका जो कंडीशन है ऑक्टेट रूल कहाँ पे चलेगा, फिर से देखिए पीरियड 2 का जो भी एलिमेंट है वो डेफिनेटली उसको ओबे करेगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही NS2NP6 है, राइट, यानी 2s2 है. यहाँ पे दो लगा दीजिए. फिर कहाँ पे चलेगा, फिर ग्रुप 1 है, कोई भी आपका ग्रुप 1 का मेटल्स है या 2 का है तो भी चलेगा. फिर नॉन मेटल्स है तो भी चलेगा, राइट, नॉन मेटल्स में भी चलेगा. फिर हम ऐसे बता रहे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या आता है, C है, H है, O है, N है, राइट, S है, X है, वेयर X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो वो जो चलता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वहां पे भी वो चलेगा. लेकिन अब देखिए कार्बन है वो सेकंड ग्रुप में है, ऑक्सीजन भी सेकंड ग्रुप में है, नाइट्रोजन भी सेकंड ग्रुप में है, इसमें से एक हेलोजन भी सेकंड ग्रुप में है. तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनिक में अच्छी तरह से काम करेगा. तो उसकी दिक्कत क्या है, ये जो हम बता रहे हैं ऑक्टेट रूल की दिक्कत क्या है, तो ये जो है विच इज नॉट यूज फॉर द ट्रांजिशंस एलिमेंट एज वेल एज द लेंथेनाइट सीरीज, एक्टेनाइट सीरीज, उसमें कुछ नहीं काम कर सकता. क्यों काम नहीं कर सकता वो हमें आगे देखते हैं. पहले देखिए हम क्या बोलना चाहते हैं हम आपको, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल. कई बार ऐसा होता है कि ग्रुप 2 में भी ऐसे कोई एलिमेंट है, जैसे आप देखिए मैं यहाँ पे बेरिलियम और बोरोन दोनों दिखा रहा हूं, इसमें भी थोड़ा लिमिटेशंस है. क्या लिमिटेशंस है आप देखिए एक बार, ठीक है. When beryllium, जैसे मैं आपको बता रहा हूं बेरिलियम है, राइट, सो इन देयर आउटर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. ओके, मैं उसके साथ जोड़ना चाहता हूं कि 2 है तो इसका मतलब है कि इसके साथ 2 क्लोरीन हम जुड़ सकते हैं, 2 क्लोरीन, right. So when beryllium is attached with the 2 chlorine, so it's convert into what, so it's convert into beryllium chloride. ये हम यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है. देखिए अभी बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड बेरिलियम. सो इट मींस दैट दे डज नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल. उसमें बेरिलियम की दिक्कत है. ऑक्टेट का भी डेफिनेटली लिमिटेशंस है, लेकिन इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर में, तो वो कैसे 8 इलेक्ट्रॉन में चले जाएंगे, क्योंकि 2 उसके जो एडजेसेंट एटम देंगे तो 2 अपने पास है तो 4 ही हो गए. So 4 electrons around beryllium. Okay, so same problem that we have to show in the case of boron too. So when boron, we know that the 3 valence electrons in boron, right? So it's attached with a 3 chlorine atom. So it's converted into what? So it's boron, chloride, right? So boron ट्राइक्लोराइड में चला जाएगा, ठीक है. तो अब देखिए यहाँ पे बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बोरोन के पास 6 है. यानी ये जो बेरिलियम है, बोरोन है, देखिए हम कई बार ऐसा होगा ये एक्सेप्शनल बिहेवियर अपना दिखा रहा है. कई बार कोई बच्चे या कई सर भी ऐसे बोले ये एक्सेप्शनल बिहेवियर. डेफिनेटली आप ऑक्टेट रूल की वजह से देखेंगे तो लेकिन वो एक्सेप्शनल नहीं, इसके पास ही नहीं है. बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 2 है, वो 2 के साथ ही जुड़ सकता है, यानी 2 पड़ोस के आएंगे यानी कोवेलेंट बनेंगे, तो टोटली बेरिलियम के पास 4 ही हो गए, बोरोन के पास 6 ही हो गए. तो वो तो जिंदगी में भी कभी भी अपना ऑक्टेट बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है. तो the incomplete octet of the central atom. So once again, there are also some molecules in which the central atom behave as though it has less than an octet, and the most common examples involves the compounds of beryllium and boron. फिर मैं अपना एक और बता रहा हूँ, odd electrons molecules होते हैं. Some molecules have an odd number of electrons. देखिए कई में ऐसे होते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं. मैंने आपको एक बार लुईस स्ट्रक्चर में सेशन में मैंने दिखाया था. नाइट्रिक ऑक्साइड है मेरे पास, नाइट्रिक ऑक्साइड है. सो द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ये मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको. ये है इसका टोटल नाइट्रिक ऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं. देखिए आप, राइट, 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट. सो 11 को मैं जैसे, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्टेट कर रहा है. ये देखिए यहाँ पे ऑक्टेट हो गया है, देखिए यहाँ पे, तो कि 4 और 2 6 और 2 8 हो गए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है, 2 है, 6 और 1 7 हुए, ऑक्टेट नहीं हुआ है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आप देख रहे हैं वो ऑड इलेक्ट्रॉन मोलेक्यूल्स में आता है. ओके, सो ओके फाइन. अब एक मैं थोड़ा यहाँ पे भी आपको एक जिक्र कर दूं. व्हेन
देर आर एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मोलेक्यूल, जैसे दिख रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे फ्यूचर में मालूम है? उसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। एंड ड्यू टू द लैक ऑफ द स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद अ फील्ड ऑक्टेट एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव स्पीसीज। ये जो स्पीसीज हमें मिलेगी ना, वो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है। वो ज्यादा वो स्टेबल नहीं रह सकती है, ठीक है। वो अपना कुछ यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो स्टेबल होने के लिए कुछ भी करेगी, तो उसको हम फ्यूचर में फ्री रेडिकल भी हम बोल सकते हैं। देखिए, मैं दूसरा आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूं, वो है NO2। जैसे मैंने NO2 का भी स्ट्रक्चर्स देखिए, आपको मैंने वो जो फॉर्मल चार्ज वाला मैंने जो लेक्चर्स लिया था, 3 लेक्चर्स मैंने बैक टू बैक लिए थे, राइट। तो जो मैं लेक्चर्स मैंने उसको लिए थे, उसमें आप देखिए यहाँ पे उसका ऑड इलेक्ट्रॉन है। देखिए आप यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल हम नहीं समझा सकते, सो इट्स अ लिमिटेशन ऑफ लॉ। ये मोलेक्यूल का लिमिटेशंस नहीं है, देखिए आप, ये ऑक्टेट रूल का लिमिटेशंस है। क्योंकि लुइस कोसेले ने जब बोला था, तो उसने अपने लिए क्या हुआ कि जैसे आप कोई भी नोबेल गैस लेंगे, तो उसकी आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड दोज हु सेटिस्फाइड द 8 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्सेप्ट, सो दे आर स्टेबल इन नेचर। तो यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है कि कहीं ऐसे मॉलिक्यूल है स्टेबल होने के बावजूद भी ऑक्टेट रूल ओबे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने जो आपको अभी जो जिक्र कर रहा हूं, वो है द एक्सपांडेड ऑक्टेट। और अभी एक्सपांडेड ऑक्टेट क्या है, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। एलिमेंट्स इन रोज बिलो सेकंड रो, मैंने आपको बोला सेकंड रो तक तो वो सब कुछ चलेगा, लेकिन सेकंड रो के नीचे हम जैसे जाएंगे, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं मेरे पास फास्फोरस 15 नंबर फास्फोरस है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितने हुए? 6 2 8 2 10 12, तो अभी 3 ले। ओके, देखिए ये जो है मैं आपको बता रहा हूं, वो हीलियम का है, ये देखिए आप नियोन का है, और ये जो है वो उसका आउटर शेल है 3s2। लेकिन आपको मालूम है यहाँ पे एक 3D पड़ी हुई है, लेकिन वो अभी एम्प्टी है, वो अभी खाली है, बिल्कुल खाली है। ऑर्बिटल का एरिया है, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉन अभी मिल नहीं पा रहे हैं। सेम वे इन द केस ऑफ 16 नंबर सल्फर, राइट। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 होगा। तो ये तो हीलियम का स्टेबिलिटी है, यहाँ पे नियोन का स्टेबिलिटी है। यहाँ पे आप देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कई बच्चे ऐसे बोलेंगे सर इसका एलिमेंट्स इन द रोज बिलो सेकंड रो सच एज फास्फोरस एंड सल्फर समटाइम्स डू एक्सीड इन ऑक्टेट बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से 8 से ज्यादा वो अपनी तरह से होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है डी की कैपेसिटी कितनी इलेक्ट्रॉन्स की होती है? 10। यहाँ पे भी हाँ, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपना तरह से होल्ड कर सकते हैं। वो तो क्या थी दिक्कत, क्या थी नियोन में, क्योंकि नियोन का नंबर ही 10 था, 2 और 8 था, तो वो 8 ही होल्ड कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो वो होल्ड ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो होगा वैलेंस सेल के लिए थर्ड रो मैंने जो बताई है अभी, इन विच योर n इज इक्वल टू व्हाट, सो योर n इज इक्वल टू 3। सो मैक्सिमम वो कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि n में क्या होता है, 3 में L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1 और L इज इक्वल टू 3। ये इसका एंगुलर मोमेंटम नंबर होता है। यानी मुझे 3s भी मिल सकता है, 3p भी मिल सकता है, 3d। इसकी कैपेसिटी 2 है, इसकी कैपेसिटी 6 है, यानी वो 18 इलेक्ट्रॉन्स तक होल्ड कर सकता है। ओके, सो विच हैव sp-df सबसेल एंड कैन होल्ड। और देखिए उसके बाद में जैसे मेरे पास फोर्थ रो है, देखिए फोर्थ रो है। फोर्थ रो में n इज इक्वल टू 4 के लिए मुझे L की कितनी प्रोबेबिलिटी मिलेगी? L इज इक्वल टू 0 1 2 और 3, यानी एंगुलर एजीमुथल क्वांटम नंबर मुझे इस तरह से मिल सकता है। यानी मेरे पास 4s भी है, ये 4s है, ये क्या है 4p है, 4d है, 4f है, इसकी कैपेसिटी 2 है, इसकी कैपेसिटी 6 है, इसकी 14 है। तो कितने इलेक्ट्रॉन तक वो होल्ड कर सकते हैं? देखिए 16 और 2 18 और यानी 32 इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन्स तक वो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो फॉर एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड, राइट, सोडियम थ्रू क्लोरीन,
So for elements in the third period, sodium through chlorine and beyond the higher empty orbitals, 3d being closer in energy to 3p, right? इसमें क्या है, 3p और 3d की एनर्जी लेवल है ना वो बिल्कुल बाजू बाजू में है, right? So can be used to so they can be used to accommodate additional shared period electrons to the octet. So hence the elements such as sulfur, chlorine, phosphorus and silicon, they form compounds in which 5 or 6 electron pairs surround the central atom. Okay, so this pair may also be shared with the other atoms. For example, जैसे मैंने आपको यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ. देखिए ये जो PF3 का एग्जांपल है ना, मैं दिखा रहा हूँ PF3 आपको यहाँ पे अच्छी तरह से. PF3 है, राइट? इसमें हम शेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ पे और दूसरा उसके पास है. देखिए यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्टेट लग रहा है, फ्लोरीन का भी है, ये भी है, ये भी है. तो उसने ऑक्टेट रूल है ना वो फॉलो किया हुआ है. बट इन द केस ऑफ PCl5, जैसे मैं PCl5 की बात कर रहा हूं तो PCl5 में क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं Cl है, Cl है, Cl है, Cl है. तो आप देखिए PCl5 का मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जो लॉन पे आप भी आपकी तरह से ट्राई कीजिए, लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है. कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड फॉस्फोरस, यानी उसने ऑक्टेट से ज्यादा. लेकिन उसके हमें यहाँ पे क्वेश्चन था, सर ये 10 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है? नहीं है, फॉस्फोरस का नंबर क्या है? 15 है. मैंने अभी आपको बताया उसके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो वो 5 देखिए 3s2 3p3 है, राइट? यानी यहाँ के इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 5 है और 5 क्लोरीन के आएंगे यानी 10. तो 10 इलेक्ट्रॉन को वो होल्ड कर सकता है क्योंकि उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स है. सेम वे सल्फर भी है, उसके पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल है. मैं एक सल्फर का भी आपको यहाँ पे एग्जांपल्स देना चाहूंगा. 2 एग्जांपल्स मैं सल्फर के देना चाहूंगा. मेरे पास एक SF6 है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है. तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6. देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6. तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आप देख रही है, ठीक है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड. तो जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको मिल रहे हैं? तो 12 इलेक्ट्रॉन आपके पास मिल रहे हैं. देखिए फ्लोरीन का तो ऑक्टेट हो गया, लेकिन 12 क्यों? 12 की कैपेसिटी है उसकी नहीं, बिकॉज सल्फर हैविंग देयर 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल और 6 है वो फ्लोरीन के है, यानी वो अपना, क्योंकि उसके पास जो कैपेसिटी है ना वो अभी तक 18 इलेक्ट्रॉन्स की है, यानी अभी तो उसने 12 ही लिए हुए हैं, 18 तक वो अपनी एक्सटेंड कर सकता है, राइट? सो देखिए और एग्जांपल भी मैं इसका देना चाहता हूं. जैसे मेरे पास S डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, O है, H है, O है, H है, राइट? सो इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल. सल्फ्यूरिक एसिड का मैंने एग्जांपल दिया हुआ है. अब देखिए सल्फर के आउटर में कितने हैं, यहाँ पे आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है. देखिए 4 8 10 12, यानी 12 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सल्फर एटम्स. यहाँ पे भी 12 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सल्फर एटम्स. यहाँ पे मैंने बताया 10 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड फॉस्फोरस एटम्स. तो कई लोगों को ऐसा ही लगता है कि उसने ऑक्टेट रूल ओबे. तो कई बच्चे ऐसे बोलते हैं नहीं सर PCl5 है, SF6 है, H2SO4 स्टेबल नहीं. अरे बहुत ज्यादा स्टेबल है. वो स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑक्टेट रूल, मैंने अभी भी आपको बताया ऑक्टेट रूल का लिमिटेशंस क्या है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन तक की जिसकी कैपेसिटी है उसके लिए तो वो चलता ही है. मैंने आपको बताया ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कोई भी मेटल्स में, यानी इसके केटायंस में भी चलेगा, नॉन मेटल्स के एनायंस में भी चलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी उसका है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी. फिर मैं आपको अप टू ग्रुप पीरियड नंबर 2 तक चलेगा. लेकिन पीरियड 3 पीरियड 4 जैसे हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो वो ऐसे मॉलिक्यूल्स बना सकता है. ठीक है, आपको समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया आपको? कोई भी दिक्कत हो तो कई बच्चे अच्छी तरह से, मुझे ये भी बहुत अच्छा बढ़िया लग रहा है कि आप में से कई ऐसे जिज्ञासु बच्चे हैं जो मुझे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो मुझे मैसेज कर रहा है. आप भी कीजिए, क्योंकि अभी मेरे पास एक ही मीडिया है, अभी मैं आपको लाइव मिल नहीं सकता हूं, लेकिन मैं आपका जैसे भी अच्छी तरह से आपका जो प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको सॉल्व कर सकता हूं. ठीक है. अदर ड्रॉबैक्स ऑफ द ऑक्टेट थियरी भी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कहीं ऐसी भी है कि जिसमें ऑक्टेट रूल का थोड़ा प्रॉब्लम ये भी है.
वो क्या है, द ऑक्टेट रूल डज नॉट वर्क इन मॉलिक्यूल्स विच हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो तो मैंने आपको बताया, जैसे NO और C, जैसे मेरे पास ClO2 है, देखिए आप ClO2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन ClO2? ClO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? देखिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। इसके कितने हैं? 12, यानी 19 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 19 इलेक्ट्रॉन्स का उसमें तो ऑक्टेट लगेगा ही नहीं। तो उसमें जैसे बोल रहे हैं कि द ऑक्टेट रूल डज नॉट वर्क इन द मॉलिक्यूल्स विच हैव एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सच एज NO, ClO2 मैंने अभी बताया। दूसरा क्या है इसका दिक्कत, द ऑक्टेट रूल वॉज पोस्टुलेटेड। देखिए आप देखिए, ऑक्टेट रूल का जो बेस है वो किसने दिया था? वो किसने दिया था? कॉसेले और लुइस ने दिया था। कॉसेले और लुइस का बेस क्या था? उसने सभी में इनर्ट गैस की ही बात की थी, राइट? सो हमें मालूम है द ऑक्टेट रूल वॉज पोस्टुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इनर्ट बिहेवियर। वो जो इनर्ट गैस है वो अभी अपनी कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं दे रहा है, इनर्ट बिहेवियर एंड लैक ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ नोबल गैस। लेकिन मैंने अभी 2 बार अपने सेशंस में मैंने बोला था कि एक जर्मन ग्रेजुएट स्टूडेंट था बार्टलेट, उसने बताया कि सम कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैस सच ऑफ लाइक ज़ेनॉन, एक है क्रिप्टॉन, राइट? ये जो दोनों गैस है क्रिप्टॉन ज़ेनॉन, क्योंकि उसमें क्या है, जैसे आप नीचे जैसे मेरे पास है, यहाँ पे हीलियम है, देखिए नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन है, रेडॉन है, ठीक है? जैसे कोई भी ग्रुप में हम नीचे जैसे जा रहे हैं तो उसका एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो अट्रैक्शन होना चाहिए वो कम हो रहा है। यानी ये जो क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन है उसकी साइज ज्यादा होने की वजह से वो जो बढ़िया ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो उसके साथ एग्रेसिव कंडीशंस में हम उसको जोड़ सकते हैं। जैसे ये मैंने कंपाउंड बनाया KrF2, देखिए मैंने ये भी कंपाउंड बनाया XeF2, मैंने ये भी कंपाउंड बनाया XeOF2। मैंने तो कई ऐसे एग्जांपल्स आपको वो स्ट्रक्चर में भी दिए थे फॉर्मल चार्ज गिनने के लिए। XeF6 है, राइट? XeO2F2 है। देखिए इसने कई कंपाउंड, लेकिन यहाँ पे इसको ये बताना चाहिए मुझे कि ये क्यों प्रोसेस कर रहा है। नहीं, इसलिए प्रोसेस कर रहे हैं, ज़ेनॉन और क्रिप्टॉन की एटॉमिक साइज बढ़िया हो गई है। दूसरे सामने वाली जो है वो पार्टी है, जैसे हम बोल रहे हैं वो मोर, आपको मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हाईएस्ट वैल्यू या बिग बॉस है, वो पूरा पीरियोडिक टेबल का बिग बॉस है। फ्लोरीन कभी भी प्लस नहीं हो सकता, इसके पास से कोई खींच ही नहीं सकता है। या वाइस कैप्टन है ऑक्सीजन, ये दोनों जैसे इसके साथ एग्रेसिव कंडीशन में जुड़ेंगे तो कई कंपाउंड बताएंगे। इसका मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूं कि ये कंपाउंड स्टेबल है, लेकिन बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनर्ट गैस की जो हम स्टोरी बता रहे थे, वो जो इनर्ट गैस पूरी तरह से इनर्ट है ऐसे हम नहीं कह सकते, राइट? फाइन। सो और थर्ड उसका क्या है प्रॉब्लम, इट डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। वो जो है, वो जो मॉलिक्यूल्स का शेप है और उसकी जो रिलेटिव स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर्स की है, वो उसके बारे में कुछ भी बता नहीं रहा है। जैसे H2SO4 का स्ट्रक्चर क्यों ऐसा है, हम इसका जो मैं कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, स्टीरियो स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, राइट? ये जो लुईस स्ट्रक्चर है वो तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, मैं PCl5 का स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे अभी दिया हुआ है, ठीक है? तो PCl5 का स्ट्रक्चर्स ट्राइगोनल बाइपिरामिड है, तो उसका शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिड क्यों है, इसका ऑक्टाहेड्रल क्यों है, राइट? तो ये जो मुझे शेप है उसके बारे में कोई भी ऑक्टेट रूल या जो है वो उसकी बात नहीं कर रहा है, और रिलेटिव स्टेबिलिटी की भी बात है वो यहाँ पे समझा नहीं रहा है। सो मैंने अभी जो आपको यहाँ पे समझाया है वो ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको ऑक्टेट रूल का जो लिमिटेशंस है वो मैंने आपको बताया है। आप अच्छी तरह से एक बार अपनी टेक्स्ट बुक में जो ये 4.1.5 नंबर का जो टॉपिक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से उसको पढ़ लीजिए। फिर भी कोई क्वेरी हो तो मुझे डेफिनेटली बता दीजिए। इसका मतलब ये हुआ, नॉट सेल में मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ऑक्टेट रूल जहां तक चलता है तो आप चलाइए, नहीं चलता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है, यानी इसकी स्टेबिलिटी नहीं है, राइट? ये ऑक्टेट रूल की दिक्कत है। ऑक्टेट रूल का जो फंडा है उसमें जो प्रॉब्लम्स है, और जो फंडा है वो तो इनर्ट गैस की तरह से दिया गया था, लेकिन हमें अभी मालूम है कि क्रिप्टॉन ज़ेनॉन भी कंपाउंड बना सकते हैं, तो इस तरह से वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है, ठीक है?